So once again, I see Rajendra sir. Welcome to all of you on the 18th episode of interview series. The theme of today's series is how to get into Big Four. माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों को बिग फोर के बारे में पता नहीं है, बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म है। हमारे कंट्री में 4 ऐसे बिग फर्म है जिसको हम बिग फोर कहते हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम होते हैं। तो थीम है हाउ टू गेट इनटू बिग फोर। तो हमने गेस्ट भी वहीं से उठाया हुआ है, वहीं से इनवाइट किया है, जो ऑलरेडी बिग फोर में काफी अच्छे काम कर चुके हैं। आज की गेस्ट जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल एंड सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। Thank you so much. She is upcoming author, social entrepreneur, and apart from that, motivational speaker. She motivates very well and a trainer. So she is always passionate about his her dreams and always excited to do something else. So welcome, most welcome, Ayushi, to your live show of Facebook. Thank you so much, Rajendra. And before we begin, I would like to thank you for having me here. Thank you for inviting me on your page for this live program. And I'm really excited. I hope आपकी audience को काफी कुछ अच्छा सुनने को मिले मुझसे, जो उनको help करे life में. या ऑडियंस का तो पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिलेंगे। थैंक यू। So, Ayushi, we are in touch with more than a month, and during that period मैंने बहुत कुछ आपके बारे में पता चला, और इंटरव्यू के दौरान मैंने काफी रिसर्च भी किया आपके बारे में कि आप कहाँ से क्या करते थे। आपने PwC में मोर देन 6 years काम किया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपने एक नया जर्नी स्टार्ट किया है। तो डियर, मैं जानना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास गर्ल्स जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, वो कैसे बिग फोर तक पहुंचती है और कैसे वहां पे इतने लॉन्ग टर्म तक अपना सर्विस देती है। तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? Yeah, of course. So getting into PwC was a really big achievement for me. And even after clearing CA final, in first attempt both groups, I still consider getting articleship into PwC is my biggest achievement. So, but यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि द ओरिजिनल ड्रीम वाज नॉट टू गेट इनटू बिग फोर, बट it started even when I knew what a PwC is. It started a decade before getting into PwC. So originally when I was 8 to 10 years old, मेरा ये goal था that by the time I turn 18 years of age, I should be financially independent. So this was my original dream, and getting into Big Four was a part of it. So I used to see my father. He's a self-made person, and he always used to inspire me. So I always wanted to be like him. So when I was 8 or 10 years old, I decided by the time I'm 18 years old, I should be financially independent, because that is a good age that you should be on your own. So that was the first step. That was my goal. Now, even after I was 17 years, I had no clue how I'm going to be independent. And I remember on my 17th birthday, I was thinking कि मुझे 18 years तक तो financially independent होना था, and here I don't have any plan. एक साल में मैं क्या करूँगी? Because I come from a good family, my parents would never allow me to get involved in anything else apart from studies. Because I was really good at studies, they wanted me to focus only and only on my studies. So they won't even allow me to take tuitions or anything. So, and getting out of city was not even a question, because I come from a conservative family. So 17th birthday हो गया, and I was thinking कि एक साल में क्या हो जाएगा ऐसा कि मैं independent हो जाऊंगी. And a few days after that, I was in class 12th at that time. And few days after that, I filled CA-CPT form along with my friends, because that's the best thing commerce student they do. And being a academically good student, I also filled this form for CPT. तो CPT का फिर मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया आफ्टर आई क्लियर 12th. सो अप्रैल फर्स्ट वीक से मेरा क्लास था. एंड उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था PwC क्या होता है. एंड 2-3 days आफ्टर माई क्लास स्टार्टेड, एक दिन वन नाइट, me and my brother, we got into a really bad fight. So he was really bad at me, and he scolded me. He told me, like, you be in your limits or I'll throw you out of my house. And
and those words were really painful to hear. And I felt very embarrassed, humiliated and helpless. My parents were not even home. So वो रात का 1:30 बज रहा था जब हमारा झगड़ा हुआ. And after that night I couldn't sleep in my own house. I couldn't sleep, and every night I used to think कि अब तो मुझे जाना ही यहाँ से, you know, even if I have to move out of city, I have to move out because I cannot be here. So that night onwards I didn't sleep for a single night because I couldn't. मुझे आई यूज टू रिकॉल द सेम इंसिडेंट. सो वहां से मुझे लगता है मुझे डिटर्मिनेशन मिला. दैट इंसिडेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. इट गेव मी डिटर्मिनेशन दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ यू हैव टू डू समथिंग बिग सो दैट यू डोंट गेट ह्यूमिलेटेड दैट वे. So that was second step where when I got determination to do something. उसके बाद लाइक आई स्टडीड हार्ड. आई यूज्ड टू अवेक ऑल द नाइट. सीपीटी क्लियर करा अच्छे मार्क्स से. सीए आईपीसीसी भी बोथ ग्रुप अच्छे मार्क्स से क्लियर करा. एंड तब तक भी कुछ प्लान में नहीं था. एंड पीडब्ल्यूसी के बारे में सुना था, बिग फोर्स के बारे में सुना था, बट टीचर्स जिस तरह से बताते थे ऐसा लगता था बहुत बड़ी चीज़ है ये. तो यहाँ पे तो मतलब 3 पीस सूट में पहन करके एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले एवन लोग होते हैं. लाइक आई डिडंट थिंक ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर. Even though I knew Big Four is something really big, I didn't dream of it. Then uske baad after my exams were done, so same routine. I couldn't sleep at night. So my brother was preparing for CAT examination. So he had one book. एप्टीट्यूड का एक बुक था. तो मैं एग्जाम्स होने के बाद मैं रात में वो लेकर के बैठती थी बिकॉज आई वॉज वेरी यूज टू स्टडिंग समथिंग एट नाइट. तो मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करती रहती थी. फिर एंड एग्जैक्टली 7 years अगो, लाइक वो जुलाई का फर्स्ट वीक ही था. वन मॉर्निंग माई फादर टोल्ड मी कि बेटा अगर बाहर जाके आर्टिकलशिप करना है तो तुम देख लो. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड. आई मीन लाइक कि ये कहाँ से आ रहा है. आई नो यू आर नॉट गोइंग टू सेंड मी आउट ऑफ इंदौर, बट आई वाज लाइक ठीक है बोल रहे तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो मेरा ओरिजिनली आई डिडंट हैव एनी प्लान. सो बट आई मेट अ गर्ल in a CS induction training. So she was always determined कि मुझे बाहर से आर्टिकलशिप करना है, मुझे किसी बड़े फर्म से आर्टिकलशिप करना है. तो वो CS का ट्रेनिंग में आई मेट हर बिकॉज दैट टाइम आई वाज आल्सो स्टडिंग CS. तो CS की ट्रेनिंग में मिले थे. तो आई called that friend. I asked her कि यार have you decided where you are going to do articleship from? Have you applied just to know so that I can follow her? So she told me that I have applied in all the big fours and PwC में तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया है और नेक्स्ट वीक GD है. तो मैं तो उसके लिए GD के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. एंड दैट वाज द पॉइंट. मतलब I got fire in my belly, and from that moment onwards I went crazy. I'm like I want to apply in PwC. like मैंने अप्लाई करने का सोचा भी नहीं. and she applied and she even got shortlisted. तो मुझे वो धुन चढ़ गई. लाइक इवन आई वांट टू गो टू अ बिग फोर. सो उसके बाद ये हुआ कि उसका कुछ शी गॉट बिजी विद समथिंग एल्स, सो शी कुडंट हेल्प मी फर्दर. एंड वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिगर्ड आउट हाउ टू राइट अ रिज्यूमे. आई एम नॉट अ वेरी टेकी पर्सन, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई डिडंट हैव एनीवन टू गाइड मी. तो मतलब दिन भर नेट पे बैठ करके रिज्यूमे के टेम्पलेट डाउनलोड करे. मैंने अपना खुद का रिज्यूमे बनाया. एंड एवरी चार्टेड अकाउंटेंट इन माय सर्कल जिनको भी मैं जानती थी सबको मैंने कांटेक्ट करा, सबसे हेल्प मांगा कि मेरा रिज्यूमे रिव्यू करो एंड हेल्प मी बिग फोर में कैसे अप्लाई करते हैं. मतलब आई डिडंट लीव एनी सिंगल पर्सन. मैंने हर किसी को पूछा. एंड आई हैव 2 cousins. They are both chartered accountants, so they helped me. They reviewed my resume, they finalized it. तो वो एक पार्ट हो गया. दूसरा चीज था मुझे अप्लाई करना था. तो आई विजिटेड ऑल द वेबसाइट्स. सारे बिग फोर का मैंने वेबसाइट्स विजिट किया. बट वहाँ पे सबसे पेनफुल पार्ट ये होता था जहाँ पे भी अप्लाई करने का सेक्शन होता था वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता आर्टिकल्स प्लीज डोंट अप्लाई हियर. एंड आई वॉज एट माई विट्स एंड कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ. आई डिडंट हैव एनीवन हु कैन गाइड मी. तो मैं सुबह लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एट 11 o'clock. मैं सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बस कंप्यूटर के आगे बैठी रहती थी. एंड आई यूज्ड टू फिगर आउट. मतलब एटलीस्ट 500 टाइम्स मैंने हर एक बिग फोर का वेबसाइट विजिट किया हुआ था. ठीक है. एंड हर किसी को कॉल किया था कि कैसे हेल्प मतलब कैसे भी करके यू हेल्प मी, कैसे करना है, आई वांट टू नो. बट मुझे कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिला. फिर दैट टाइम फेसबुक वाज ओनली ऑफ माई हेल्प. तो वहाँ पे देयर वर ग्रुप्स
फॉर पीपल हु वांटेड टू गेट इनटू बिग फोर. मैंने सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए. लाइक देयर वर मोर देन 10 ग्रुप्स वेयर आई जॉइंड, एंड मैंने सब जगह मैसेज डाल दिया लाइक एनीवन हु नोज समबडी फ्रॉम बिग फोर और समवन हु कैन हेल्प मी टू गेट इनटू बिग फोर, प्लीज रिप्लाई, प्लीज कमेंट. मैंने सब जगह कर दिया, बट मुझे 2-3 दिन तक वहां से भी कुछ रिप्लाई नहीं आया. सो इन माई फ्री टाइम, मतलब पूरा दिन फ्री होता था ये चीज के लिए, तो मैं दिन भर बैठ करके जितने भी मेंबर्स होते थे उन सबका प्रोफाइल गो थ्रू करती थी. आई विजिटेड सो मैनी प्रोफाइल्स, लाइक अनकाउंटेबल प्रोफाइल्स मैंने विजिट किया. वो सारा करके हो गया. फिर भी मुझे थोड़े लोग मिले थे जो बिग फोर के थे, एंड आई मैसेज देम पर्सनली, यू नो, इफ यू कैन हेल्प मी. बट टू माई सरप्राइज नो बडी इवन रिप्लाइड. मैंने काफी लोगों को मैसेज किए थे, वो भी हो गया. उसके बाद मैंने अपना लक ट्राई करने के लिए आई केम अप विद वन मोर थिंग. मैं रैंडम नंबर रैंडम नेम्स सोचती थी. ओके, ये नेम एंड ये सरनेम, एंड आई यूज्ड टू टाइप कि ये बिग फोर से निकल जाए, ये बिग फोर से निकल जाए. सो आई Oh my वेंट टू God. दैट एक्सटेंट कि यार कोई तो मिल जाए कि मुझे हेल्प कर दे. बट कुछ हुआ नहीं. बट फिर 1-2 दिन बाद मुझे जो मैंने ग्रुप्स पे कमेंट किया था, पोस्ट किया था दैट आई एम लुकिंग फॉर सम हेल्प. सो वन जेंटलमैन ही रिप्लाइड, ही सेड कि आई कैन हेल्प यू. एंड विद इन 20 seconds मैंने उनको पर्सनली मैसेज कर दिया, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ऑनलाइन. आई सेड कि यू कमेंटेड दिस ऑन माई पोस्ट, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई. आई वॉज सो Okay. डेस्परेट, आई डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न. 1-2 दिन लगा, बट ही गेव मी लिंक एंड आई फाइनली अप्लाइड. देन मुझे वहाँ से मैसेज भी आ गया दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. बट वो भी मतलब आधा ही स्ट्रगल था, अभी काफ़ी कुछ बाकी था. 1-2 बार मेरा टेलीफोनिकली एचआर ने बात किया. फिर फाइनली लाइक 31 जुलाई को आईपीसीसी का रिजल्ट आने वाला था. 15 जुलाई तक मैंने अप्लाई कर दिया था. तो मुझे अराउंड 30th जुलाई, अ डे बिफोर माई रिजल्ट वॉज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड, आई हैड दिस इन्विटेशन इन माई मेल बॉक्स दैट यू हैव टू कम फॉर इंटरव्यू. पीडब्ल्यूसी से इन्विटेशन था लाइक 3rd and 4th of August. प्लीज कम फॉर इंटरव्यू इफ यू क्लियर एग्जाम. तो 31 जुलाई आई वॉज वेरी मच होपफुल कि मेरा क्लियर हो जाएगा. एंड टू माई एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया. एंड मैं इमीजिएटली आई वेंट टू माई अगेन माई कंप्यूटर एंड आई रोट देम बैक कंफर्मिंग दैट आई एम कमिंग फॉर एन इंटरव्यू. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई डिड. एंड देन आई सेलिब्रेटेड, रिसीविंग कॉल्स एंड जो भी फैमिली में सेलिब्रेशन था उसके बाद वो हुआ. सो दिस वॉज 31st जुलाई. नाउ आई टोल्ड माई फादर कि वी हैव टू गो. 3rd और 4th को इंटरव्यू है, सो 2nd अगस्त का वी नीड ट्रेन टिकट्स. तो ये 1st अगस्त का बात है. एंड ही डिडंट रिप्लाई एनीथिंग. फिर आई आस्क्ड हिम अगेन कि हम लोग टिकट हुआ या नहीं हुआ, हम लोग को जाना है इंटरव्यू के लिए. सो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया. एंड 2-3 बार मैंने और पूछा. ही स्कोल्डेड मी वेरी बैडली. ही इज लाइक कि यू नो यू कैन नॉट गो, तो नहीं जा सकते और मुझे बहुत जरूरी काम है, यू कैन नॉट गो. तो बस I went into mini depression. Like I gave so much of effort to this thing, and here I am not even going to get to attend the interview. तो मैंने पूरा दिन I didn't come out of my room. I was crying, I was sleeping, I was sobbing. तो वो that day I didn't cheer up at all. I didn't have my lunch or dinner. So sweets भी लाके रखा था because I completed IPCC, but वो किसी से like I completely cut off myself from everyone. So Okay. again my father came to me. He was like कि what happened to you? I'm like कि आपने मुझे बोला था तो मैंने अप्लाई किया, and after I put in so much of effort, you cannot stop me from going. And then we entered into a deal like okay, मैंने उनको बोला see if you don't want me to move out of city, I won't leave the city, but at least मुझे इंटरव्यू दे के आ जाने दो. तो मैंने जो इतनी मेहनत करी, मैं एटलीस्ट देखूँ तो सही बिग फोर कैसा होता है, बिग फोर के लोग कैसे होते हैं. तो ही सेड कि ओके ठीक है तुम इंटरव्यू के लिए चल जाओ. बट देन अगेन कि उनका ही हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क. और मैं Okay. तो कभी मतलब सिटी के बाहर भी नहीं गई थी अकेले, तो मुंबई कैसे जाती अकेले. तो बट देन अगेन वो फ्रेंड शी केम इनटू पिक्चर. शी वाज गोइंग विद ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल. तो Okay. उन लोगों से कुछ बात किया, समहाउ टिकट भी जुगाड़ किया बिकॉज तत्काल वॉज क्लोज्ड. एंड फाइनली आई वेंट टू मुंबई. आई हैड माई कजन इन मुंबई, सो शी वॉज ऑफ वेरी मच हेल्प. तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. आई वेंट फॉर इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड टेस्ट. अभी लास्ट 2 days
इतने बुरे थे कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैं अपने नोट्स भी लाना भूल गई थी, बट फर्स्ट वन वाज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट हैपेंड एंड मैंने मतलब जल्दी जल्दी में कर दिया, जो समझ में आया वो कर दिया, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि आई डोंट हैव टू बी सिलेक्टेड, आई एम जस्ट अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर माई सेटिस्फेक्शन। तो मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा और मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। when results were going to be declared, it came to my mind कि अरे मैं इतना दूर इतना झगड़ा करके आई हूँ, और अगर फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं होगा तो फिर कितना बुरा लगेगा मैं क्या बोलूंगी। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया कि ये क्या कर दिया मैंने। बट थैंकफुली आउट ऑफ 150 पीपल 150 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर इट, मेरा नाम सेकेंड लास्ट था, लाइक 49th नंबर पे मेरा नाम था, एंड आई क्लियर्ड फॉर दैट राउंड। ओके। तो मुझे लगता है ये जो पूरा स्टोरी है, इट्स फुल ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर मेरा वो हैबिट नहीं होता, कैट की बुक में से मैंने पढ़ा नहीं होता उस वक्त, तो मैं ये राउंड बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकती थी जिस तरह से मैंने दिया था। तो ये हुआ, एंड सेकंड आई वेंट फॉर एचआर राउंड। अगेन एचआर राउंड में उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग अबाउट यू, एंड फॉर विच आई डिडंट प्रिपेयर ऐसे स्पेसिफिकली। बट थैंकफुली व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर आईपीसीसी, हम लोग के जो टीचर थे, ही गेव अस टास्क कि यार लोग दूसरों के बारे में इतनी ज्यादा बातें करते हैं, अपने खुद के बारे में 2 मिनट तक बोल भी नहीं सकते। तो सब स्टूडेंट्स को टास्क मिला था कि यू प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। तो मैंने उस वक्त प्रिपेयर किया था, एंड द मेमोरीज वर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। तो वहां तो उन्होंने पूछा नहीं टीचर ने, नेक्स्ट डे वो भूल गए, बट मैं नहीं भूली जो मैंने प्रिपेयर किया था। एंड व्हेन एचआर आस्क्ड मी टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो मुझे अच्छे से पता था मुझे क्या बोलना है, तो मैंने बोला, एंड आई गॉट क्लियर्ड फॉर एचआर राउंड ऑल्सो। एंड टेक्निकल राउंड में आई डिडंट हैव नोट्स, बट फॉर्चुनेटली आई मेट someone and she later on became my best friend after joining PwC. So she shared her notes, I brushed up my technical skills and I appeared for it. It was really good, and वो भी मेरा क्लियर हो गया। देन आई केम बैक टू इंदौर, एंड इंदौर में आके मुझे पता चलता है कि मैंने जो बहुत क्रूशियल टाइम था आई स्पेंट इन मुंबई, एंड बाय द टाइम आई केम बैक टू इंदौर, वहाँ पे जितनी भी अच्छी फर्म्स थी वहाँ सब जगह आर्टिकल्स का रिक्रूटमेंट हो चुका था। एंड मैंने बाद में जाकर के इंडिविजुअली आई यूज टू गो टू एवरी फर्म एंड ड्रॉप माई रिज्यूमे, बट आई डिडंट रिसीव एनी कॉल फ्रॉम एनी फर्म, क्योंकि हाँ वहाँ पे ऑलरेडी रेफरेंसेस के थ्रू सबका सिलेक्शन हो चुका था, और मुझे इंटरव्यू का कॉल तक नहीं आया। तो मैंने अपनी पूरी आर्टिकलशिप के लिए सिर्फ एक ही जगह इंटरव्यू दिया, दैट वाज पीडब्ल्यूसी। मुझे कहीं से कॉल तक नहीं आया मुझे इंटरव्यू का, बिकॉज सब जगह रेफरेंस के थ्रू सिलेक्शन हो गया था। सो फाइनली मुझे पार्टनर्स राउंड के लिए कॉल आया, बट इट डिडंट गो वेरी वेल। 8 मिनट्स तक था, देयर वाज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिकॉज इट वाज टेलीफोनिक। तो आई बिकेम सो हेल्पलेस एंड सो होपलेस, क्योंकि इंदौर से तो गई और वहाँ से भी अब मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा था, बिकॉज पार्टनर राउंड वाज नॉट सो गुड। तो बट फाइनली लाइक मुझे 15 डेज बाद वहाँ से कॉन्फर्मेशन कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, एंड दैट वाज 20th of August 2013, और दिन में 2 बजे कॉल आया था। मुझे अच्छे से छपा हुआ है वो सीन मेरे माइंड में, एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माय लाइफ। लाइक वो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट था। फिर उसके बाद आई वेंट टू मुंबई, लाइक आज से 7 years पहले, और मेरा जो ओरिजिनल ड्रीम था कि बाय द टाइम आई एम 18, so IPCC when I was appearing for it I was already 18, when I joined PwC I was already 18, तो वो चीज 18 years में पूरी नहीं हुई। बट हाँ, जब मेरा 19th बर्थडे था तो वहां से I was financially independent, because Big Four gives you good reasonable stipend, so I was able to take care of my own expenses. So I didn't fulfill my dream when I was 18, but हाँ, when I was 19, so it came true for me, and that is I consider it to be biggest achievement of my life. And if when I look back, तो मुझे लगता है कि जो when you pursue your dreams you get a lot of heartbreaks, there is a lot of hurt involved, but somehow it's a blessing in disguise. अगर मैं पीछे देखती हूँ वो टाइम जो सपना सच हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर ब्रदर से लड़ाई नहीं होती जो कि उस वक्त बहुत हर्टफुल थी, तो मैं कभी मैं इस पॉइंट को शेयर करता हूँ कि आपके स्टोरी में मुझे कई चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज कनेक्टिंग डॉट की बात आपने जो की है।
कि एब्सोल्युटली। फर्स्ट आपका जो एक एक्स्ट्रा हैबिट जो था कि कुछ पढ़ने का, वो डॉक्यूमेंट हुआ। दूसरा, ब्रदर्स के साथ लड़ाई भी कहीं न कहीं ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तीसरा, अपने ड्रीम के लेकर डेस्परेट होना और अपने ड्रीम को लेकर हसल होना। चौथा, सपने एब्सोल्युटली। देखना, क्योंकि सपने लोग देखते नहीं हैं आजकल। सपने देखना और उसके लिए आप 24 आवर कर देना, जो भी आप मैक्सिमम कर सकते हो। और लास्ट ये है कि जब एफर्ट कर रहे हो तो एक ही पॉइंट पे इतना बार मतलब किल गाड़ो कि वो कहीं न कहीं किल जाएगा ही अंदर। 10 जगह किल गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। Hmm. And if there is no door, then build one door and get एग्ज़ैक्टली। through it. और दूसरा उसके एंड उससे इंटरेस्टिंग भी ये था कि मतलब चूंकि मुझे इंदौर में आर्टिकलशिप नहीं मिली, तो मेरे हुँ। फैमिली ने बोला जाओ। मतलब वो भी मेरे ही फेवर में था, लाइक लड़ाई ओके। होना, फिर मुझे आर्टिकलशिप नहीं मिलना। एंड हुँ, सेकेंडली मैं सोचती हूँ कि अगर चीज मेरे पास रेफरेंस होती और मेरा हुँ, इजीली हो गया होता, तो आई वुडेंट हैव बीन सो प्राउड ऑफ माई एफर्ट। मैं हुँ, इतना प्राउड फील नहीं करती अगर मुझे किसी और ने हेल्प किया होता, तो आई वुडेंट हुँ, हैव बिकम द काइंड ऑफ पर्सन आई एम टुडे। सो आई हैव दिस हुँ, कॉन्फिडेंस, आई कैन डू एनीथिंग ऑन माई ओन। सो हुँ, that incident, that instance was the starting of it. So हुँ। even if somebody is going through a difficult time, they just needs to be hopeful that it is the darkest, before the dawn. So they are ओके। moving towards their dream. That's what I feel. नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। ये आपके स्टोरी पे मुझे लगता है कि 1-2 मूवी हम बना सकते हैं आराम से, डॉक्यूमेंट्री 1-2 बना Actually, सकते हैं। this is my favorite story मेरे पूरे लाइफ का, एंड वो ऐसा लगता है वो ओम शांति ओम में है ना, हुँ, इतनी हुँ, हुँ। शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, तो ओके, ये स्टोरी पे वो 100% अप्लाई होता है कि ओके, पूरी कायनात ने साजिश की है, तो इट कम्प्लीटली, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट थ्रू दिस स्टोरी। ओके। मेरा पहले ना कुछ दिन पहले एक सपना था कि मैंने एटलीस्ट 500